I've been talking about the laws of spiritual growth. और पासवान जी जैसे कि आत्मिक वृद्धि के जो नियम है उस पर चर्चा करते आ रहे हैं. And last Sunday I spoke about the law of process. और पिछले रविवार को जो प्रक्रिया का नियम था इस पर चर्चा हुई. And today I want to talk to you about a very powerful law. और आज एक बड़े समर्थशाली नियम पर बोलने जा रहे हैं. If this one law operates in your life, अगर ये एक नियम आपकी जिंदगी में काम करे, all other laws can be tied to it. तो हर एक दूसरा नियम जो उसके साथ जुड़ा रहेगा. I want every one of you, if you have an iota of sense, you will listen to what the Spirit of God says this morning. और आज चाहते हैं कि पूरा ध्यान लगाकर प्रभु का आत्मा जो कह रहा है ना उसे सुनिएगा. Because this could be the difference between life and death, failure and success. और I देखिए mean it. जीवन और मृत्यु और कामयाबी और नाकामी के बीच में देखिए ये असर ला सकता है. Here's the laws that I've covered. और देखिए ये वे सारे नियम जिस पर चर्चा हो गई है. I want the leaders and the people, those who are serious about, learning the things of God, to please go to my YouTube channel. Go through these, make notes, keep one book for this. And I tell you, many people, they क्या करते पता है? कल ही सुनते हैं, चर्च में आते हैं, सुनते हैं, बोला ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. कभी टाइम नहीं लेते सीखने के लिए. Okay, सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ. Please do this, what I'm telling you. जो आपसे कहा जा रहा है मेहरबानी करके जरूर करिएगा. All right, let's go into this. Today's law, which I want to talk about today, और देखिए आज का नियम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं is called the law of humility. ये है नम्रता का नियम. The law of humility. नम्रता का नियम. The higher we climb, और देखिए जितना ऊंचा हम जाते हैं the smaller the ground that is beneath our feet appears. और हमारे पैरों के नीचे की जमीन देखिए उतनी छोटी दिखाई देने लगती है. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? The higher you go, जितना ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं the ground beneath our feet looks smaller. उतना ही ज्यादा देखिए हमारे पैरों के नीचे की जमीन छोटी दिखाई देने But लगती it is that very ground लेकिन that फिर भी keeps us standing. वही जमीन हमें खड़े कराए रखती है. Is anybody listening this क्या कोई morning? सुन रहे हैं? In this world, इस दुनिया में we are obsessed with elevation. हम देखते हैं कि तरक्की के लिए बहुत ही हम चाहत रखते हैं, इच्छाओं को रखते हैं. और गलत नहीं है, तरक्की के लिए चाहत रखनी चाहिए. अपने पड़ोसी से कहो तेरी तरक्की हो यीशु के नाम से. बोलिए ना, तुम्हारे 2 पड़ोसी हैं. तुम तुम्हारे फेवरेट पड़ोसी को तरक्की करते हो. बाजू वाला बैठा है, बोले कोई तो मुझसे बात करे. So we are a generation that's obsessed with elevation, with promotion. और देखिए हम ऐसी पीढ़ी हैं जो पदोन्नति चाहते, तरक्की चाहते हैं. We're obsessed with titles. We're obsessed with platforms. और देखिए हमें पदवी मिले, हमें अच्छा मंच मिले, इसकी चाहत हम रखते हैं. We're obsessed with applause. और देखिए लोगों की ताली वाहवाही चाहते हैं. Nothing wrong. कोई खराबी नहीं. But few pause to ask, few pause to ponder. लेकिन बहुत ही कम लोग जो हैं रुकते हैं और सोचते हैं या पूछते हैं What sustains or what has made this person to rise into where he is right now? कि इस व्यक्ति को क्या चीज ने ऊंचा उठाया और इसे बनाए रखा है वहां. I want to share a paradox with you, something that is opposite saying. I don't know how. This is called a figure of speech. Anybody understands? My goodness, figures of speech. Renan Martin? You're laughing. The Red Book? Oh, you do know, okay. All right. Some of you hated it, right? I loved it. The paradox is this. देखिए इस तरह की विचारधारा, Some statement that is opposite, और देखिए कुछ ऐसे बयान जो लगते मेरा हैं कि दोस्त है, उसका नाम है शत्रु. It's a paradox. Does anybody understand? Example of a paradox. Pastor, how much marks did you get? I got good marks. So here's the paradox. तो सुनिए इस बात को. The answer lies in a paradox. It says, to stay up, you must learn to stay down. और देखिए ऊंचे बने रहने के लिए आपको नीचे रहना सीखना To होगा. stay up, ऊंचे ऊपर बने रहने के you लिए must learn to stay down. आपको नीचे रहना सीखना होगा. That's what is humility. और यही तो है नम्रता. How many of you following me, church? कि तो समझ से कलीसिया. To stay up, you must learn to stay down. ऊंचे बने रहने के लिए आपको नीचे रहना सीखना To होगा. rise higher, you must learn to stay grounded.
और देखिए ऊंचा उठने के लिए आपको जमीनी स्तर पर बने रहना होगा। That's my definition of humility. और यही तो पासबंद की परिभाषा है नम्रता के लिए। Now, many people think humility means thinking less of yourself. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नम्रता का मतलब है खुद को कम आंकना, खुद को नीचे गिराना। वो तो सोचते हैं कि वो ही है नम्रता। So many people say अपने आप के बारे में कहते हैं, अरे मैं तो पागल आदमी हूं यार, मैं तो निच्छड़ हूं यार, मैं तो कीड़ा हूं यार। हेलो, when you pray, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं you use this false humility even before God. ऐसे झूठे झूठे नम्रता को जो है आप परमेश्वर के सामने भी इस्तेमाल करते हैं। प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु जानता है तू पापी है। That was a good one. ये अच्छा था। Hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Now if you tell God once, every day you come, every day, morning, evening, you say मैं पापी हूं। अरे आगे बोल यार। हर दिन आप परमेश्वर के सामने आते हैं सुबह शाम और कहते हैं मैं पापी हूं। परमेश्वर अरे इसलिए मैं तुझे तेरे लिए मरा। Are you with me now? क्या आप साथ में हैं अभी? No, that's false humility. और ये तो झूठी नम्रता का एक उदाहरण है। You put yourself down. आप अपने आप को नीचे डालते हैं। That's not humility. ये नम्रता नहीं है। What is humility then? ये नम्रता फिर क्या Now, है? I want you to understand this. Please let this thing go into your spirit. Otherwise, it will destroy you. और होने देखो ये आपकी आत्मा में समा जाए नहीं तो ये आपको नाश कर देगी। हाँ, बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी, वो शैतान उसे खींच लेगा। ध्यान सुने मैं क्या बोल रहा हूं। True humility is thinking yourself right based on the word of God. सच्ची नम्रता जो है अपने बारे में सही सोचना परमेश्वर के वचन के मुताबिक। Paul says, पौलुस कहते हैं I am what I am मैं वो हूं जो सू हूं by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से। Paul did not deny. प्रेरित पौलुस ने नकारा नहीं। You know, अभी मैं आपके पास आऊंगा, बोला क्या गाया यार तूने? नहीं यार, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार। ये प्रभु है। अरे प्रभु थोड़ी गाया, तू गाया ना। हेलो, are you with me right now? क्या बजाया? कुछ नहीं यार, बकवास बजा। Don't put yourself down. Paul says, I am what I am by the grace of God. अपने आप को नीचे मत डाले। प्रेरित पौलुस ने कहा मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर के So अनुग्रह if से। anybody compliments you, say thank you, तो अगर कोई आपकी सराहना करता है तो आप कहें शुक्रिया, but glory to Jesus. लेकिन यीशु को महिमा मिले। How does that drive? Yeah. Amen. Hello, are Amen. you listening? Yes. Thank you. शुक्रिया। Don't climb the tree, झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, but glory to Jesus. लेकिन यीशु को महिमा मिले। How many of you are understanding this? क्यों समझ रहे इस बात को? So true humility तो सच्ची नम्रता is thinking about yourself in line with the word of God. सच्ची नम्रता अपने बारे में सोचना परमेश्वर के वचन के अनुसार। It's not seeing our smallness, but seeing the greatness of God working through us. और देखिए हमारे छोटेपन को नहीं देखना, लेकिन देखना कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जरिए काम कर रहा है। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? I want you to understand this truth. और चाहते कि आप इस सच्चाई को समझ लें। So this is the law of humility. तो यह है नम्रता का नियम। What is true humility? सच्ची नम्रता क्या Let है? me boil it down for you. चलिए बताते हैं आपको फिर से। It's an internal awareness ये आंतरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे जानना या वाकिफ होना है of our personal weaknesses, हमारे व्यक्तिगत कमियों को, and yet rooted in gratitude towards God. फिर भी परमेश्वर की ओर आभार मानने का एक रवैया अपने अंदर बनाए रखना। Go with me to the book of Matthew 11:29. और चले जाएंगे मत्ती का 11वां अध्याय 29वां वचन। Matthew 11:29. मत्ती का 11वां अध्याय, Bring it on. Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। Take my yoke upon you. Refers to the word of God. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यह परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है। Take my yoke upon you मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn from me. और मुझसे सीखो। Learn. Everyone say learn. सभी लोग कहें सीखो। There is a learning that has to happen. Many people only do a listening, a casual listening. There has to be a learning. और बहुत सारे लोग सिर्फ महज सुनने का कार्य करते हैं, लेकिन देखिए सीखना भी जरूरी है। Pastor, I hear you. पासवान जी मैं आपकी सुन रहा हूं, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, But are you learning? लेकिन आप सीख रहे हैं? मैं चर्च गया था, काफी अच्छा लगा। तो क्या तू सीखा कुछ? नहीं मजा आया। अरे मजा तो आया है भाई, तू सीखा क्या? You see, that's where the people don't understand about coming to church. और देखिए यहीं पर तो लोग समझ नहीं पाते कलीसिया में आने के बारे में।
Take my yoke upon you मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn from me. और मुझसे सीखो. Look at somebody and say, we are learning. किसी को देखकर कहें हम सीख रहे हैं. What do you learn? You have to apply it in your life. और देखिए जो आप सीखते हैं उसे आपको अपनी जिंदगी में लागू करना है. That is complete learning. और यही तो पूर्ण तौर पे सीखना है. Otherwise, you end up with the head knowledge. नहीं तो आप दिमागी ज्ञान के स्तर में जाएंगे. Are you following me what I'm क्या saying? आप समझ रहे हैं इस वक्त जो कह रहे Much हैं? of our instruction, much of our education today is head learning. So that's why we have now introduced practical learning. They have called internships. और देखिए आजकल ज्यादा जो सीखने को मिलता है जो इससे जो है दिमागी ज्ञान ही मिल रहा है. इसी वजह से देखिए दूसरी भी चीजें शुरू की गई हैं. Internships, जहां पर जो सीखा है उसे हम कार्यशील करते हैं, लागू करते हैं. So learning is not just listening, learning is application. तो देखिए सीखना जो है सिर्फ सुनना ही नहीं है लेकिन इसे काम पर लगाना भी है. Take my yoke upon you and learn from me, for I am what? Gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Here's the truth, write it down. देखिए बच्चे में लिखा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. अब सुनिए Two things, write it down. दो चीजें लिख लीजिए. True humility सच्ची नम्रता is manifested when a person is learning. इसमें दिखाई देता है जब कोई व्यक्ति सीख रहा होता है. He's not afraid to learn from anyone. देख किसी भी से भी वो सीखने के लिए डरता नहीं. अरे तू बच्चा है, मुझे क्या सिखाएगा? अरे बच्चा भी बाप को सिखा के जा सकता है. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Many times we see the age of a person बहुत बार क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति की उम्र को देखते हैं and we think just I'm 60, all this fellow Stephen to teach me. Listen. सुनिए That's why Jesus, when he was 12 years old, he could speak to the religious folks and they say, my God, what wisdom. और इसी वजह से जब यीशु की उम्र देखिए 12 साल की थी तब भी वो धार्मिक लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा अरे बाबा इसकी क्या बुद्धि है. Many times, if we don't see the person teaching in our packaging, oh, he's not cool, he's not, hello, he doesn't have that hair, you know. और बहुत बार देखिए जब हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो सिखा उसके बाल वैसे नहीं है जैसे हमें चाहिए. No, sir. नहीं जनाब. I don't care if he has hair or no hair, I'm still going to learn. और फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाल हो या ना हो मैं फिर भी सीखूंगा. Cool or uncool, I'm going to learn. So you see, that's where the people of the times of Jesus, they missed learning from the greatest teacher. और इसी वजह से हम देखते हैं कि यीशु के समय काल में भी एक महान शिक्षक गुरु जो उनको सिखाने आया था उससे सीखने से चूक गए. Only the disciples were learning because they were willing to learn. सिर्फ चेले लोग सीख सके क्योंकि वे सीखने के लिए इच्छुक और तैयार थे. Hello. सुनिए I said hello. Humility manifests itself in this manner first. The person says, I am willing to learn. I'm willing to spit the bone and eat the flesh. और नम्रता देखिए दिखाई पड़ता है इसमें कि व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं. मैं हड्डी को फेंक दूंगा लेकिन मांस खाऊंगा. मतलब जो चीज जरूरी नहीं उसे बाजू रख देंगे और आगे बढ़ेंगे. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? I want you to understand this. चाहते कि अभी Many times we go to a place and we find out, oh ये बराबर नहीं था, वो बराबर. अरे वो जो बराबर नहीं था बाजू रख, जो ठीक था वो उसकी बात कर. Are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? Yes. So lowly in heart. See over here. This lowliness made Jesus to even learn. और देखिए To look at people. और इस नम्रता ने देखिए यीशु के साथ ऐसा किया कि वो लोगों को देखते थे. And the next thing manifests, humility manifests, is you will find rest. You will find peace of mind in your soul. और दूसरा जो नम्रता में दिखाई पड़ेगा वो ये है कि आपको विश्राम मिलेगा. आपके प्राण में आपको शांति और चैन मिलेगी. Humility will bring peace and rest in your soul. और नम्रता जो है आपके प्राण में शांति और चैन लाएगा. Humility, my friend. So humility is not just a look, it is a lifestyle. तो नम्रता सिर्फ दिखने वाला एक रूप नहीं एक जीवन शैली है. How many of you following me, church? चलिए कितना समझ है कलीसिया? The Pharisees wore humility in their attire. और देखिए फरीसियों ने अपनी नम्रता जो है अपने पहनावे में दिखाए. पहनावे में. They would wear long jabbas.
और देखिए लंबे लंबे वो झब्बे ऐसे पहनते थे And on that they used to put the word of God. और उसमें नीचे परमेश्वर का वचन लिखा होता था They used to tie the word here. और वे वचन को यहाँ बांधते They थे used to tie the word here. और वचन को यहाँ बांधते थे Now Jesus didn't have the word anywhere like that. और यीशु ने अपने ऊपर वचन कहीं पर भी इस तरह से नहीं लगाए थे But when he spoke, only the word came from his mouth. लेकिन जब यीशु ने अपना मुख खोल के बोला तब सिर्फ वचन ही निकल कर आया How many are listening right now? किधर सुन रहे हैं So, hello. सुनिए सुनिए Yes. So humility is not in your veshbhusha. तो आप नम्रता जो है आपके पहनावे या वेशभूषा में नहीं है Veshbhusha. I got that word, right? Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त आपके पहनावे में, आपके वेशभूषा में नहीं है, लेकिन आपके एटीट्यूड में है. लेकिन आपके रवैये में है What is your attitude? ये रवैया क्या है Next, write it down. What is second part is your attitude. Point number 2, write it down. My attitude. और दूसरा रवैया देखिए लिख लीजिए मेरा रवैया How do you talk to people? लोगों से आप कैसे बात करते हैं How do you talk to people who are lesser than you? जो लोग आपके स्तर से नीचे के स्तर के लोग हैं देखिए ए छोटे, किससे बात करते हैं आप भैंस का आवाज कैसा है तेरा? क्योंकि वो छोटा है इसीलिए. और तेरा बराबर हाँ छोटे है. और ऊपर वाला छोटे है. अच्छा, जितना आदमी नीचे जाता है तेरी आवाज बढ़ती है क्या? तेरी एटीट्यूड ठीक नहीं है. How many understand what I'm saying? कितने समझ जो कह रहे हैं अभी The Bible says a rich man answers roughly. और बाइबल ऐसा कहती है कि एक अमीर आदमी जो होता है कड़क उसका रवैया होता है उत्तर देता है Rough. सख्त तौर पे He's trying to portray he's tough. और वो दिखाना चाहता है कि वो कठोर है How do you talk to people in church? कलीसिया में लोगों से कैसे बात How do करते you talk to family? हैं परिवारों में कैसे बात बोले ये करते किधर जाएंगे? No sir. हैं? नहीं जनाब It's not humility. ये नम्रता नहीं है Now I know this may sound, look at somebody say today's message is very tough actually. अपने पड़ोसी को देख करके आज का संदेश बहुत ही You कठिन है। should have come last Sunday. It was even tougher. Hello, are you listening, आप church? सुन रहे हैं कलीसिया So humility is not an attire. It's not what you wear. तो नम्रता जो है यह पहनावे में जो आप पहनते हैं उसमें नहीं है They acted humble. और उन्होंने देखे नम्रता का ऐसा बर्ताव तो किया ढोंग किया. हेलो, कैसे हो? कितना हम्बल है यार, कितना झुकता है रंग शारदा में. हेलो. Yes, they acted humble, but they were craving for attention. लेकिन फिर भी अंदर से जो है लोगों का ध्यान खींचने के तड़पते थे If the spotlight is not on them, अगर स्पॉटलाइट उन पे ना हो then there's going to be trouble. तो वहां पे मुसीबत खड़ी होगी Others are in darkness, no problem. दूसरा अंधकार में फर्क नहीं पड़ता Spotlight घुमा रहे. Spotlight हमारे पर होनी चाहिए. That is how they were. और इसी तरह से वे थे Is anybody following me what I'm क्या कोई saying? समझ रहे हैं इस वक्त Go with me to book of Luke 20 verse 46. चलो जाएंगे लूका का 20वां अध्याय 46वां वचन So God is not looking for garments. God is not looking for an outer attire. God is looking for an inner posture. देखिए परमेश्वर देखिए इस तरह का बर्ताव या इस तरह के पहनावे में दिलचस्पी नहीं रखता है लेकिन वो अंदर आपका दिल की मुद्रा कैसी उस पे दिलचस्पी रखता है Somebody say I'm listening. चलिए कोई तो क्या मैं सुन रहा हूँ Go to Luke 20 verse 46. लूका See- का 20वां अध्याय 46वां See वचन what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या कहा Says beware. He didn't say beware of the devil. Come on now. अगर यीशु में खबरदार शैतान. Beware of the scribes शास्त्रियों से सावधान रहो who desire to go around in long robes. जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने फिरना अच्छा लगता है अच्छा लगता है. Instagram पे फोटो आता है. Love greetings in the marketplaces. The बाजारों में best नमस्कार seats in the synagogues. आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन And the best places at feasts. और भोज पर्व में जो है मुख्य मुख्य स्थान They always wanted the spotlight on them. और वे हमेशा चाहते हैं कि स्पॉटलाइट उन पर ही रहे Hello. सुनिए So when the spotlight went on Jesus, तो जब स्पॉटलाइट यीशु पर गए they were very angry. उनको बहुत गुस्सा आया How do you act? How do you react किस तरह से आप प्रतिक्रिया दिखाते हैं when people don't shine the spotlight on you? जब लोग स्पॉटलाइट आप पर नहीं चिपकाते हैं Oh, never mind. तो खैर कोई बात नहीं Say it everyone, humility is not in your garments. सभी लोग कहें नम्रता आपके पहनावे में नहीं है If you wear white doesn't mean you're very holy.
अगर आप सफेद कपड़े पहनते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही पवित्र हैं। One day I went to one state पासवान जी एक दिन एक राज्य में गए in South India. दक्षिण भारत में। So I came on the stage. तो पासवान जी मंच पर आए, I was wearing white shirt. सफेद शर्ट पहने हुए थे। One Ammachi came. एक अम्मा जी आई, Said, you pastor, you're so holy. तो आप बहुत पवित्र पवित्र हैं। Sir, किसके बारे में बोल रही? Because just 15 minutes back, I had a tiff with Pastor Anita. Hello, don't you have a fight with your wife? Why are you laughing at me? Just kidding. मजाक कर रहे, सुनिए All husbands have a tiff with their wife. Now listen to this. सुनिए। So I said, what do you mean holy? You don't even know me. तो पासवान जी ने पूछा, ये आप पवित्र पवित्र आप क्या कह रही है? आप तो मुझे अच्छे से जानते भी नहीं। नहीं पास्टर, आपने white पहना है ना? अच्छा, पहले बोलने तो white पैंट भी पहनता था मैं। अच्छा, white पहना इसलिए होली। In fact, I had in the hotel, I had a black shirt. दरअसल होटल में इनके पास And the organizer told me, अच्छा हो गया black shirt नहीं पहना। Hello? Yes. So you see, church, even in our culture, our Christian culture, we equate colors with holiness. तो यहाँ तक के देखे हम हमारे मसीही संस्कृति में We even in our hello. We think holiness is or humility is a type of clothes. No, sir. हम सोचते हैं If the person doesn't have money to buy the clothes, so then what to do? अगर मान लीजिए Is he not humble? Hello? कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हो तो क्या करें? Maybe the color is out of stock. या फिर वो कलर मिलना ही बंद हो गया हो। गई तुम्हारी humility बाहर. Look at somebody and say, चलिए किसी और देखकर कहें, humility नम्रता is not in garments. कपड़ों में नहीं है। How many of you following me right now? Write it down. Write it down. Lastly, I want to say, before I go into something very, very powerful, church, बहुत ही समझशाली चीजों में जाने से पहले सुनिए, write it down. लिख लीजिए। Go to Psalm 103, please. चलो जाएंगे भजन संहिता का अध्याय 103। Psalm 103, verse 14. I want to just give you the basic of humility. Then I want to pray for you, church. और नम्रता के देखिए बुनियादी चीजों को आपके सामने पेश करना चाहते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे। For God knows our frame. He remembers that we are dust. वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है और उसको याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। How does God deal with us? परमेश्वर किस तरह से हमसे बर्ताव करता है? God deals with us knowing that we are just dust. परमेश्वर हमसे निपटता है या बर्ताव करता है इस बात को जानते हुए कि हम बस मिट्टी हैं। क्या है हम? क्या है हम? मिट्टी है, मिट्टी. God knows our frame. वो हमको जानता है and He remembers that we are dust. परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है और वो याद रखता है कि हम महज मिट्टी ही हैं। Hello, are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? That's how God deals with us. इसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करता है। But this dust is touched by the Holy Spirit, by divinity. लेकिन यह मिट्टी जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, दैवीयता के द्वारा छू ली गई। That's why we are where we are. और इसी वजह से देखे आज जहां हम हैं वहां पहुंचे हैं। Praise the Lord. प्रभु स्तुति Now हो। let me talk to the leaders. अगुओं से बोलने दो। Let me start with the pastors, group supervisors, J12 leaders, and even me for that matter. और चलिए पासबान लोग जो हैं, जो ग्रुप सुपरवाइजर, जो J12 अगुवे, यहाँ तक कि हम लोग भी अपने से शुरू करेंगे। Many years ago, कई साल पहले, please listen to this now. ध्यान से सुनिए। Now I shift. Now I give you the thing. Now I want to shift. Listen carefully. देखिए मुख्य चीज आपको। Many years ago, there was a prophet. और देखिए कई साल पहले एक भविष्यवक्ता, His name was Rick Joyner. उनका नाम रिक जॉयनर था। And he was fasting and praying for a couple of days. और वे कुछ दिनों के उपवास और प्रार्थना के सत्र में थे। And in that fasting and prayer, और उस उपवास और प्रार्थना में God showed him about the end times. परमेश्वर ने उन्हें अंतिम समय की बातें दिखाई। Listen to this. सुनिए से। And he saw a tall mountain. और उन्होंने देखा एक बड़े ऊंचे पहाड़ को, And on that mountain, people were climbing. और उस ऊंचे पहाड़ पर लोग चढ़ रहे हैं। And as the people were climbing, और जैसे लोग चढ़ रहे थे, there were these eagles, demonic eagles, coming and throwing things at the people. और फिर उन्होंने देखा कि एक शैतानी उकाब चील जो आकर उड़ते हुए आकर लोगों पे चीजें फेंक रहे हैं। Listen to this. सुनिए। And some of them were just about to reach the top. और उनमें से कुछ बस उस चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। And some weird looking eagles came and spat something on them and they would fall down in the flames. और कुछ अजीब से दिखने वाले चील ऐसे उकाब आए और आकर कुछ उन पर थूका और वे वहीं से गिरे। Listen to this. सुने।
But there were some people, लेकिन कुछ और लोग भी थे, they were dressed in very ordinary looking clothes and they were making it and the thing was touching them and it was falling. और उन्होंने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वे चढ़ते चढ़ते चोटी पर पहुंच गए और वे चीजें आकर उनको छूने लगी और वे चीजें गिरने लग गई And they were going to the top. और वे चोटी पर जाने लगे. And Rich Joyner और रिक जॉनर जी was visited by the Lord. प्रभु के साथ उनकी मुलाकात हुई And he asked the Lord, और उन्होंने प्रभु से पूछा, how, ध्यान से सुने इस वक्त, ध्यान से सुने, how did they make it to the top? और कैसे वो चोटी पर पहुंचने में कामयाब He हुए. asked him, what is that mountain? और उन्होंने पूछा कि ये पहाड़ क्या था. And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, the mountain is called the mountain of the Lord. ये पहाड़ जो है ये प्रभु का पहाड़ है. And these are the people trying to climb the mountain. और ये वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं उस पर्वत, उस पहाड़ They पर are चढ़ने. in their journey of faith. वे विश्वास की अपनी यात्रा को शुरू किए हुए. Listen to this. सुने इसे, Long story short, लंबी कहानी छोटा करके. said, Lord, what are those people who have made it to the top? What are they wearing? और फिर उन्होंने पूछा कि वे लोग जो चोटी पर पहुंच गए, कामयाब हो गए, उन्होंने वे लोग कौन है जो ये पहने हुए थे. And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, those are the people in the church today wearing the garment of humility. वे वो लोग हैं कलीसिया में के जिन्होंने नम्रता के वस्त्र पहने रखे हैं. The garment of humility. नम्रता का वस्त्र. And says, Lord, what about the people, those who have reached the top and the demons are throwing spit and they're falling down? They said, those are the people, those who are gifted, but they don't have humility. और फिर उन्होंने आगे ये पूछा कि प्रभु वे लोग कौन है जो चढ़े तो थे लेकिन शैतानी शक्तियों ने आकर उन पर कुछ थूका और वहीं से वो गिर गए. तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके पास वरदान तो है लेकिन नम्रता उनमें नहीं है. How many listen? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Gifted, वरदान, anointed, अभिषेकित, but not humble. लेकिन नम्र नहीं है. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Please listen carefully. सुनिए ध्यान से. Gifted, वरदान से भरे, anointed, अभिषेक से भरे, good looking, अच्छे खासे दिखते, personality, व्यक्तित्व तौर पे, no humility, लेकिन नम्रता नहीं, fall. सीधे गिरते हैं. This is what is going to happen in the last days. और यही होने जा रहा है अंतिम समय में. Today I warn you by the Holy Spirit. आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेतावनी देते हैं. I'm going to warn you by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहता I हूं. warn myself by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को चेतावनी देते This हैं. is a word from the Holy Spirit this morning. और ये पवित्र आत्मा की ओर से वचन है सुबह है. The danger is not the prosperity. God cannot give you the prosperity. Listen, the Lord will bless you. और देखिए समृद्धि खतरे वाली बात नहीं है. परमेश्वर देखिए आपको आशीष दे सकता The है. Lord will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Listen to me. सुनिए ध्यान The से. Lord will bless you. You will have testimonies, this, that, healings, miracles. ये end time में होगा. परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपके पास बड़ी बड़ी गवाहियां होगी. ये हुआ वो हुआ और ये सब अंतिम समय में होगा. उसके बाद क्या? लेकिन उसके बाद क्या? I want to warn you. आपको चेतावनी देना Pastor जी, मैं बहुत तकलीफों से आया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. मैं रोया, खून के आंसू रोया. Praise the Lord. लेकिन अभी तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं. उसके बाद क्या? तुम अभी रो रहे हो. You see, church, आप देखते कलीसिया, when a man goes through the fire, जब कोई इंसान आग में से जाता when है, a man goes through difficult times, जब एक इंसान मुश्किल दौर में से जाता he है, calls on the Lord. तो वो प्रभु को पुकारता है. He calls on the वो Lord. प्रभु को पुकारता Say, है. God, I need you. कहते हैं परमेश्वर मुझे He तेरी जरूरत है. cries in church. He weeps before even everyone. और देखिए It हर एक के doesn't सामने matter which girl is looking, which man is looking. Now that person does not have anything. So come on now. और देखो उस व्यक्ति के पास अब कुछ भी नहीं है तो वो रोता है बिलख बिलख कर. And what happens? और फिर क्या होता है? Good days come to that person, अच्छे दिन उस व्यक्ति के पास आ to जाते that हैं woman, और वो महिला को, to that man. उस पुरुष के पास. Now अब that person cannot cry because he or she thinks that it is below their status. अब वो व्यक्ति स्त्री पुरुष जो हैं अब रो नहीं सकते क्योंकि वो How can I cry? Because I am so and so. क्योंकि अब मैं ये प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका हूं या बन चुकी हूं. I am a manager now. अब मैं मैनेजर हूं. Now I am a what? Whatever. Fill in the blanks. God is talking to you this morning.
परमेश्वर आपसे बात कर रहा है सुबह है। God is talking to you this morning. परमेश्वर सुबह आपसे बात कर रहा है। Now I'm on this position. अब मैं इस पद पे हूँ। If the camera catches me crying, what the people will say? अगर कैमरे पे मैं रोते हुए आ गया तो लोग क्या कहेंगे? So you are dignified. तो अब आप देखिए बड़े इज्जतदार प्रतिष्ठित हो गए हैं। Hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. अच्छा. But then what happened to the apostles लेकिन क्या हुआ प्रेरितों के साथ who were in heaven? जो स्वर्ग में? They took their crowns उन्होंने अपने मुकुट को निकाले and they threw it before the Lord. और प्रभु के सामने फेंक दिया And they said, Lord, और कहा प्रभु you are alone worthy. तू ही एकमात्र योग्य है। That is why they are still elders. और इसी वजह से अभी भी वो पूर्णीय है। That is why they are still holding on to their position for so many years. और इसी वजह से कई सालों से अपना पद अभी भी वो बनाए रखे हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई लोग रो रहे हैं, मेरा काम क्यों नहीं होगा, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। सर, अगर आपका काम आज हो जाएगा ना, तो वो चीज तुम कल खो बैठोगे। मैं नहीं कहता हूं कि सभी लोगों के विषय में, कोई लोगों के विषय में कुछ स्पिरिचुअल वॉरफेयर भी हो सकता है। I want to tell you, अब समझना चाहते हैं, He knows our frame. वो हमारी सृष्टि जानता है। वो मैं कुरला ट्रांसलेशन यूज करूँ क्या? वो हमारे मॉडल को जानता है, मॉडल नंबर, रजिस्ट्रेशन सब जानता है। He knows our frame. वो हमारे सृष्टि को जानता है। And then he says he remembers. फिर आगे कहता है वो याद करता है। कुछ करने से पहले वो बोलते हैं जाने दे यार, डस्ट है। I want you to understand this scripture. और चाहते हैं कि आप इस वचन को समझ लें। He knows who we are. He knows our foundations. He knows what background we came from. और वो जानता है कि हम कौन हैं, हमारी बुनियाद क्या है, किस पार्श्वभूमि में से हम आए हैं। My friends, मेरे दोस्त, when a person receives this position, and now he's to kneel down anywhere. But now he says, अरे बाप रे, देखिए पहले व्यक्ति बस कोई पद ये मिलता तो कहीं पर भी रेमंड्स का घुटने टेकता था, लेकिन अब पद मिलने के बाद और ये रिचर्ड का है, ये जॉन का है, ब्रांड Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको हंसा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो गया था। You see, church? आप देखते You see, on Christmas night, और क्रिसमस की रात nobody kneels down. कोई घुटने पे नहीं आते, Everybody is standing. Yes. सभी लोग खड़े होते हैं। Because now it's Raymond's, it's Richard's, and it's John's. There's something over there. कहीं तो कुछ तो वहां, Something. Look at somebody and say something. किसी को देखकर कुछ तो। Hallelujah. हालेलुया। He knows our frame. He remembers that we are dust. It's time we remember. और देखिए परमेश्वर जानता है हमारी सृष्टि और जानता है कि हम मिट्टी। अब ये समय आ चुके कि हम याद रखें Where we have come from. कि कहां से हम आए हैं। Said everyone, the law of humility. सब लोग कहें नम्रता का नियम। Said everyone, the law of humility. नम्रता का नियम। Humility कब जानोगे? पता है कब हम जानोगे कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ मिट्टी हैं। The law of humility. जोर से बोलिए। नम्रता का नियम। जोर से कहें। Say it loudly. The law of humility. One more time, please. फिर से एक बार। Yes. Now I want to give you certain things that really bless you. आपको कुछ चीजें देना चाहिए जो सचमुच आपको आशीष पहुंचाएंगे। Write it down. लिख लीजिए। Humility is not dependent on your background. Oh, मैं हम लोग झोपड़पट्टी से आए ना, हम लोग ऐसे कभी झोपड़पट्टी वाले में ज्यादा घमंड होता है। नम्रता जो है आपकी पार्श्वभूमि पर टिकी नहीं होती। हेलो, बुरा नहीं मानना, मैं भी वहां से आया हूं। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। So it's not, humility is not from your background. Write it down. Humility is not from your clothes. Humility is not from your actions. Humility is a revelation. नम्रता देखिए आपके पार्श्वभूमि या आपके कपड़े या आपके कार्यों से नहीं होता। नम्रता जो है प्रकाशन से होता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारे पास जेब में करोड़ों रुपए हो सकता है, एक स्वाइप करो तो आप गाड़ी ले सकते हैं।
इतना पैसा तुम्हारे पास हो सकता है, इतना पोजीशन तुम्हारे पास हो सकता है कि तुम अभी ट्रैफिक बंद कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास रेवलेशन है, प्रकाशन है कि मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं. प्रकाशन, ह्यूमिलिटी इज अ रेवलेशन. नम्रता एक प्रकाशन है. Said everyone, humility is a revelation. सभी लोग कहें नम्रता एक प्रकाशन है. Say it again. फिर से कहें. I pray that you get this revelation this morning. प्रार्थना करते हैं सुबह आपको प्रकाशन मिल जाए. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम That में. will cause you to submit to your husband. Husband, that will cause you to forgive your wife, to love your wife, to... Come on now. पति ने जो Humility is a revelation. नम्रता एक प्रकाशन है. Otherwise, you'll question everything. नहीं तो हर एक चीजों के लिए, हर एक बात के लिए आप सवाल पूछेंगे. पत्नी है मेरी, आके कुछ प्रभु ने कहा वीकर में सुनाया है. ह्यूमिलिटी इज अ रेवलेशन. आदमी जल्दी झुकता नहीं है, और औरतें भी आजकल झुकती नहीं है. क्यों झुकूं? उसकी माँ ने मुझे सबके सामने बारे ठीक है. ज्यादा बोल दिया. ऑफरिंग हो गया क्या? नहीं? अच्छा. Said everyone, humility is a revelation. सभी लोग कहें नम्रता एक प्रकाशन है. मैं झुकूंगा क्योंकि खुदा का वचन कहता है, इसलिए. Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया. I said hallelujah. Hallelujah. ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है. ये बाहर वाले लोग नहीं, मेरे लोग हैं. ये मेरे बच्चे हैं. Humility is a revelation. नम्रता एक प्रकाशन है. Said everyone, humility is a revelation. चलिए सभी लोग कहें नम्रता एक प्रकाशन है. It does not depend. So this thing I want you to understand, church. तो चाहते कि आप इस चीजों को समझें. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? Yes. It's not bending low. ये झुकना नहीं है. Even in yoga, you bend low. It's not humility. ये नम्रता नहीं है. Somebody say, yes, I'm listening. कोई तो कहे हाँ मैं सुन रहा हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Go to 1 Corinthians 15:10. Today I want you to make this confession. चाहते कि आज आप ये अंगीकार करें. पहला कुरिन्थियों 15:10. 1 Corinthians 15:10. Paul was a man of tremendous revelation, but look what he says. I want you to say this 3 times. बड़े अद्भुत प्रकाशन और By the grace of God, I am what I am. Say it again. One more time. हिंदी में बोलिए, एक बार बोलिए. Yes. मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ. लिख के लो. पूरे 7 दिन आपको बोलना है ये. और अच्छा लगा तो पूरी जिंदगी बोलते रहो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे अंदर काम करने वाला आज से. By the grace of God, I am what I am, and His grace. कितने बार grace बोल रहा है देखो. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. देखिए यहाँ पे लिखा है परंतु मैं जो कुछ भी This हूँ is परमेश्वर humility. अनुग्रह से हूँ. This is a picture of humility. और देखिए यह नम्रता का एक चित्र है. अरे मैंने ना उसको ऐसा बात किया ना पूरा घूम गया. मालूम है मेरे. अच्छा, मैंने MBA किया है इसने. अच्छा तूने MBA किया, मैंने ABC किया है. अच्छा, तू शाना है तो कोई दर्द शाना बैठा है. इतना याद रख. कभी अपनी डिंग मत मार. कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं ना. प्रभु पॉल कहता है many times we are proud of our spiritual accomplishments. और देखिए बहुत बार हम अपने आत्मिक उपलब्धियों के लिए बहुत ही घमंड महसूस करते हैं. How many hours you pray, sister? बहन कितने घंटे आप प्रार्थना करती हैं? Half an hour. आधा घंटा. Only half an hour. सिर्फ आधा घंटा. Pray like me. मेरे जैसा प्रार्थना करो. 2 hours. 2 घंटे. I was groaning, Now this person never comes to church again then. और फिर वो व्यक्ति जो दोबारा कभी कलीसिया में आती नहीं. Pastor, you're fasting today? हसबैंड जी आज आप उपवास कर रहे हैं? No, why? नहीं क्यों? I'm on a fast 40 days. 40 दिन के उपवास में लगा हूं. तेरा मुंह देख के मालूम पड़ता है. You see, spiritual pride और देखिए आत्मिक घमंड is dangerous. बहुत खतरनाक है. You're fasting 40 days, good. आप 40 दिन का उपवास करते हैं, अच्छा है. Don't put it on the Bandra billboard. लेकिन बांद्रा के जो बिलबोर्ड पे आप उसे टांगो मत.
He's good. अच्छा ही है। Can I tell you something? क्या आपसे बता सकते हैं, There are people, ऐसे लोग हैं, write it down. Now I move to spiritual pride. अब There आप- are people ऐसे लोग हैं, who fast and pray and still the power of God does not work in them. और देखिए वे उपवास और प्रार्थना लगातार करते रहते हैं, लेकिन फिर me भी go. परमेश्वर की समझ उनके जरिए काम नहीं करती। And there are people और ऐसे भी लोग हैं, who do fasting like और जो बस महज ही उपवास करते हैं, and the power of God और works in परमेश्वर them. की समझ समझ उस पे काम करती है। You know why? आप जानते क्यों? Because they've learned to rely on the grace of God. कि उन्होंने जो परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होना सीखा है। Am I against fasting? क्या मैं उपवास के खिलाफ में हूँ? No. नहीं। Hello. I want you to understand. चाहते कि आप समझे, Fasting is good, उपवास करना अच्छा है, but it's not your fasting that changes God. लेकिन ये आपका उपवास नहीं जो परमेश्वर को बदलता है। It's not the fasting that. Fasting is a discipline. You must do it. और देखिए उपवास करने एक अनुशासन आपको ये करना चाहिए, But more than that, rely on the grace of God. लेकिन उससे कहीं बढ़कर आप परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर When हो। you start relying on the grace of God, अपने हाथों को उठा कर प्रभु का अनुग्रह होगा तो मैं करूंगा, तो तभी तुम्हें वो टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी वो एग्जाम लिखने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? क्योंकि तुम अभी टैबलेट पर, अपने फास्टिंग पर, अपने बलबूते पर नहीं जी रहे हो, तुम परमेश्वर के वचन से जी रहे हो। मेरी ये पहचान है, मेरी वो पहचान है। अरे तेरी पहचान को मार गोली, जब जरूरत पड़ती तो कोई नहीं आता है, सिर्फ खुदा तेरे साथ खड़ा रहता है। It's the grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Paul says, और उसके by the grace of God, I am what I am. Put this in the Facebook. Put it on your head. Hallelujah today. मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। Confess this today. By the grace of God, I am what I am. And His grace towards me is not in vain, but I labored. इसका मतलब मैंने कि तुम मेहनत नहीं करो, तुम पढ़ाई नहीं करो। Paul कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी मेहनत की, मैंने बहुत सारा परिश्रम किया, लेकिन मैं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे द्वारा कार्य कर रहा था। Stop talking like that. इस तरह से बात करना बंद करो। It's not wrong to show your influence and all that, but the way you talk, अरे अपना प्रभाव जो दूसरों को दिखाना, इसमें कोई खराब नहीं, लेकिन जिस तरह से आप बात करते हैं ना, पूरे स्टाइल में देख दो कोई लोग। Spiritual pride. आत्मिक घमंड, Everyone says spiritual सब pride. लोग के आत्मिक घमंड Very dangerous. बहुत ही खतरनाक। तो असं नाही तो वडलो प्राईम मिनिस्टरच्या मामाच्या पुताक हांव वळखता, मामाच्या पुताक हांव त्याच्या घोवाक वळखता. It's a Mangalorean gospel. Sometimes for our people you must give sometimes. कभी कभी हमारे लोगों को थोड़ा देना चाहिए। कोई हमें उसका बाप है ना, उसका बाप है ना, उसका साइड वाला है ना, उसको उसका बेटे को मैं पहचानता है। अरे जा रे, जब काम के टाइम कोई नहीं खड़ा रहता है तब प्रेयर रिक्वेस्ट देता तू, मामा का बेटा। Listen to me, church. सुनिए, I want to tell you, आपसे कहना चाहता हूं, if you can rely, do you want to see the power of God manifest in your life? क्या आप परमेश्वर के सामर्थ को अपनी जिंदगी में काम करता देखना चाहते हैं? I'll tell you. Can I कहते हैं आपसे। share this with क्या you? आपसे बांट सकते हैं? One day, एक दिन this is truth. सुनिए सच्चाई। One day, I think I was in Delhi. This was one of the first meeting. Please don't tell anybody. पास बजे दिल्ली में थे, किसी को बताना नहीं, पहली सभा थी। Promise? What? Yes, it's already on the internet. Listen, this is true actually. So I was in my room, तो पास बजे अपने कमरे में थे, and that day I said, I'll pray for 8 hours. No, I had no office and all that stuff. So when I go out, I spend more time in prayer. जब So बाहर जाते हो, ज़्यादा that day I समय said, I'll hit 8 hours. उस दिन And I इन्होंने- was like, the earlier meeting was like awesome. इन्होंने तय किया कि मैं 8 घंटे प्रार्थना करूंगा। No. तो पहली की सभा बड़ी जबरदस्त रही, And that day the crowd was triple. और उस दिन भीड़ जो है 3 गुना ज्यादा आई थी। I literally wrote down 8 hours, 8, 6 are 48, 480 minutes. Wow! I came out of my room feeling like Apostle Paul. और इन्होंने लिखा था कि 8 चंग 48 यानी No, really, I'll tell you. 80 मिनट प्रार्थना No, करके फिर see the attitude. Hello? The attitude. Like, I was walking as if Paul was walking, और ऐसे चल रहे थे जैसे कि पौलुस। No, I was feeling like, are you afraid now? I went over there. और गए वहां पर, The sound was not working properly. वहां पे साउंड अच्छे से चल नहीं I रहा था। bind the devil, Terry told, Nikal, Yeshu. Sound started working.
Somebody was singing over there. कोई तो वहां पे गा रहा था, He fell down from the stage. वो स्टेज से नीचे गिर गया Something happened. I don't कुछ know. तो He हुआ, went पता like the नहीं he fell- there the meeting got stopped. और वहां पर भी सभा रुक गई। अरे यार, मैं बोले क्या हो क्या रहा है? Some confusion happened. Some fight broke out over कुछ वहां पर झगड़े होने लग गए गड़बड़ी की वजह से। I said, God, what is happening? और इन्होंने पूछा प्रभु ये सब क्या हो रहा है? Then when I prayed, फिर जब इन्होंने प्रार्थना की, nothing happened. Truth. सच्चाई। One person came, और एक व्यक्ति आया, Pastor, पासवान जी, सुबह से पीठ दुख रहा था, अभी अच्छा लग रहा है। मैं बोला यार ऐसा कुछ आना चाहिए था, पीठ टूट गया था, कुछ ऐसा कटक से आ गया, समथिंग लाइक दैट। सुबह से दुख रहा था, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा दर्द है, हाँ दर्द है। I said, one testimony, एक गवाही, nothing happened. कुछ नहीं हुआ। The pastors were encouraging me. और वहां के पासवान इनको बहुत ही उत्साह बढ़ा रहे थे। Come on now. चलिए, क्या word था pastor? In my heart, I knew something was wrong. अपने दिल में इस बात That से night I वाकिफ थे, went कुछ तो to my गलत हुआ। room and asked the Lord, Lord, what happened? उस प्रभु के सामने कमरे में आकर पूछे कि प्रभु क्या हुआ? He said, son, you relied more on your prayer and rather less on the grace of God. तब प्रभु ने कहा कि बेटे परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होने के बजाय तुम ज्यादा अपनी प्रार्थना पर निर्भर हुए। Now here's the thing. अब सुनिए, Next day I came. अगले दिन It आए। was not the Wowsers. This was many years back. कई साल पहले की सब बात है ये। And I was having a meeting somewhere in Kurla. और कुर्ला में कहीं सभा चल रही थी। Hello. सुने, I reached late. The plane got delayed. Already I was angry. I और came देरी से with a पहुंचे। sad face. In the afternoon, the meeting is to happen. और दोपहर That को day, सभा- उस दिन I only prayed for 1 hour. सिर्फ 1 घंटे इन्होंने And प्रार्थना I की came on the stage. और मंच पर गए। Watch this. गौर करें, Ah! And I said, listen. सुनिए, I said, God, इन्होंने कहा परमेश्वर I'm very tired. बहुत ही थका हुआ हूँ, I need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है And प्रभु। I cried. और रो पड़े। Hello? सुने, Because yesterday I failed, na? क्योंकि पिछले कल ही नाकाम हो गए थे ना। Don't laugh now. Yesterday I failed. I fasted, उपवास prayed, किया। nothing. That day, लेकिन उस दिन Jesus, यीशु the power of God came so strong. परमेश्वर के सामने बड़े जबरदस्त तौर पे आई। Healings, चंगाई, miracles. आशा, कर्म। Pastor, मेरा आंख से दिखाई नहीं देता था, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ? मैं बोला ये क्या हो रहा है यार? उधर लफड़ा, इधर सक्सेस. I went to my room. अपने कमरे में गए। That's what I do every time. और यही तो करते हर बार। I said, God, what happened now? इन्होंने पूछा परमेश्वर अब क्या हुआ? Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह है। Is fasting wrong? No. क्या उपवास करना Is गलत है? praying wrong? क्या No. ज़्यादा प्रार्थना करना But गलत the है? नहीं। moment you learn to depend on those things rather than on the grace of God, you will fail. लेकिन जिस पल देखे परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होने के बजाय उन चीजों पर आप निर्भर होने लगता है, यहीं पर आप नाकामी पाते हैं। Said everyone, the law of humility. सब लोग कहे नम्रता का नियम। How many understood this? कितने लोग समझ गए से? How many understand? कितने क्या पैसा खराब है? नहीं सर, पैसा जरूरी है सर. Money answers all things. Book of Ecclesiastes. सब उपदेश है कि क्या पुस्तक में गाड़ी लिखा है, दाढ़ी पैसा साड़ी सारी ये चीज़ों सब गलत है? नहीं सर, जरूरी है. लेकिन जब हम चीजों पर हम लीन करते हैं तो कुछ खुदा चीज़ों पर बोलता है ठीक टिका है तो उन पर लीन कर, मैं हट जाता हूं. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? How many understanding this truth? कितने समझ रहे हैं? Is this word blessing you right now? Lift your hands and say, Lord, अपने हाथ उठा कर प्रभु teach me your ways. मुझे तेरे मार्ग सिखा। I ask you to clothe me with the garments of humility. मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु मुझे नम्रता का वस्त्र पहना दे। Oh, begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू Lift your करें। hand and begin to pray. चलिए अपने हाथ उठा प्रार्थना करना शुरू Pray करें। this every day. हर दिन ये प्रार्थना You may करें। be looking like a doll. You may be looking like some hero. But you should say, Lord, let all the glory go to you. आप Hallelujah. गुड़िया जैसे दिखती हो या Hey! हीरो जैसे दिखते हो, लेकिन आपको कहना चाहिए परमेश्वर सारी महिमा तुझी को मिले। Come on, come on, come on. चलिए। Let all the glory go to you. सारी महिमा परमेश्वर तुझे मिले। All the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh God. Get Aaron. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Keep it ready. Thank you, Lord. Can I close this now? Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? I shared with you my life. अपनी जिंदगी को इन्होंने आपके साथ साझा किया। How the anointing works. कैसे अभिषेक काम करता है? Did this clear sometimes your doubts?
आपके कुछ संदेह को इसने साफ कर दिया। Fasting is good. उपवास करना It अच्छा है। can birth spiritual pride. See, 1 day fasting, देखिए, एक दिन का उपवास, 40 days fasting. See that? That's how the Pharisees were. और इसी तरह से फरीसी लोग थे। Come on now, come on now. Hello. I said hello. Can I show you the benefits of humility? कि आपको नम्रता के फायदे बता Just one and I close. There are so many things I wanted to बहुत show, सारी चीजें हैं दिखाने के but लिए। it was a little tough, so I said, let me be good today. Proverbs 22 verse 4. Never forget this. कभी भूलना नहीं। नीति वचन का 22वां अध्याय 4वां वचन। Proverbs 22 and verse 4. Say this after me. चलो कहें, By humility and the fear of the Lord are what? By humility. नम्रता के द्वारा। नम्रता। सर, तुम अकड़ जकड़ टकड़ से तुम उस चीज को पकड़ सकते हो। नहीं सुना? ए करके हड़प सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा उसको उड़ा देगा। तुम जमा करोगे उसको, करके सब जमा करोगे, एक ही झटके में उड़ जाएगा। But here's the thing. लेकिन सुनिए, By humility नम्रता के द्वारा and the fear of the Lord, और प्रभु यहोवा का भय मानने से in your house will come riches. आपके घर में धन संपत्ति आएगी। Over your life will come honor. आपके जीवन में आदर And in सम्मान your आएगा। body there will be life. और आपके शरीर में जीवन आएगा। Receive these things in Jesus' name. ग्रहण करें इन चीजों को यीशु के I नाम में। prophesy riches, honor, and life come upon your life. ऐलान करते हैं आपकी जिंदगी पर जो है धन सम्मान और जीवन आए। Today you are crying, आज आप रो रहे हैं, but I give you 21 days, many of you. लेकिन आपको 21 दिन देते हैं। The Lord is changing your story today. परमेश्वर की कहानी बदल रहा है The आज। Lord is changing your story today. परमेश्र की कहानी बदल रहा है आज। Lift your hands and cry out to God. Make your own prayer. चलिए अपने हाथ उठाए परमेश्वर को पुकारे। All the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh God. It's to you, oh God. Say it everyone, everywhere. All the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh God. Can you sing it one more time like you mean it? Everywhere, everywhere. Hallelujah. Sing it right now. All the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh God. All the honor, all the praise, and all the glory. Hallelujah. All the glory belongs to you. All the glory belongs to you, oh God. Hallelujah. Say, Lord, what I am today हे प्रभु, जो कुछ भी मैं हूँ आज, is because of you. ये तेरी बदौलत है। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Where I am today जहाँ आज मैं हूँ, is only because of you. और ये सिर्फ तेरी बदौलत है प्रभु। Can I tell you, as a man of God, as a person who can see in the realms, क्या आप listen कह to सकते this. हैं? परमेश्वर Many जो- of your position is shifting. आप में से बहुतों का पद जो है बदल रहा है। Really, I'm telling you, it will happen. ऐसा होगा। Hear this. सुनिए, Hear this. सुनिए। I see the Holy Spirit actually writing it down. Listen to this. सुनिए, See, I'm seeing the word position shifting. Listen to this. सुनिए। Hear this. Hear this. Hear this. Hear this. Listen to this. सुनिए से। You know, when a man, देखिए, जब कोई इंसान, God gives him a position. परमेश्वर उसे पद देता है। Now, maybe it's some position you have, मान लीजिए कोई पद, कोई औदा है आपके पास, some level of success. कामयाबी का कुछ स्तर, And at that moment, और उस पल में you can just say, बस आप कह सकते हैं, it's my strength. ये मेरी ताकत से है। Because, you know, the way I talk, the way I look, the way I talk, you know. जिस तरह से मैं दिखता हूँ, You बोलता don't हूँ, do that. आप नहीं करते हैं, But you say, you know what? लेकिन आप कहते हैं Thank you. धन्यवाद, But I have come here, it's only because of the Lord. लेकिन मैं यहाँ And you पहुँचा really हूँ सिर्फ mean प्रभु that, की not बदौलत। faking it. और या पूरे दिल से कहते हैं, बस ढोंग करते हुए नहीं। You know, men, sometimes there are fakers, you know. कभी कभी देखिए इंसान ढोंग करते हैं, You know, at that time, what the Lord does. और देखिए उस वक्त प्रभु क्या करते हैं। Proverbs 22 verse 4 goes into action. और नीति वचन का 22वां अध्याय 4था वचन कार्य पर लगता है। He says, because you gave me honor over here. क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर आदर सम्मान दिया। Son, daughter, you are going to a new level. बेटे बेटी, तुम नए स्तर में जा रहे हो। I want to close. समाप्त करने जाने भी, You will be tested आपको परखा जाएगा on every level. हर एक स्तर में।
I'll say that again. फिर से कहेंगे, You will be tested आपको परखा जाएगा on every level. हर एक स्तर में, And the test is और वो परखा जाना जो है humility. नम्रता That's से। why, see, humility comes before the fear of the Lord. और Because if you have humility, the fear of the Lord will work in you. क्योंकि देखिए नम्रता से पहले प्रभु के भय से पहले नम्रता आती, क्योंकि अगर आपके अंदर नम्रता हो प्रभु का भय भी होगा। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Today I pray. आज प्रार्थना करते हैं, This is a very, very important word from the Lord. यह प्रभु की ओर से बहुत ही ज्यादा Go home. जरूरी और महत्वपूर्ण वचन है। And listen to what the Holy Spirit is saying. घर जाकर सुनिएगा जो पवित्र आत्मा कह रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? Yes. Yes. जब आंधी चलती है तो पेड़ झुकता नहीं है, वो टूट जाता है। बेचारी घास झुकती है, वापस खड़ी रह जाती है। आज आपके दिन आ गया है खड़ा रहने का। I prophesy this will happen in your life. भविष्यवाणी करते ये होगा आपकी जिंदगी में। I speak this कहते हैं in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया।